mapping is also called one-to-one mapping. Image of distinct element of A under F are distinct, that is F x1 not belong to S2 x2 1 or 2 x1 or x2 both the set element is different. It's called injective mapping and it's belong to is denoted by 1 minus 1. Then another one is a bijective mapping. It's also called one to one mapping, and both injective and surjective is considered to bijective mapping. Okay, students. Automata and languages. Regular expression. In regular expression, we use alphabet, letters, languages, and strings. And this is a symbol for regular expression. This symbol for use for plus. It's called there is a finite automata. There is a symbol of this. This one is a symbol we use in finite automata. Let's we use What is finite automata, ma'am? it's one type of expression. Okay. Okay. Uh, for example, let L1 be the language of all the positive string obtained by L1. It's called Z, double Z, triple Z, four times Z, then continue. It's also considered Z power n. N is 1, 2, 3. Firstly, we consider Z only one time, then we consider Z two time, then we consider Z three time, then we consider Z four time, then continue n times. We also like write this z power n such that n is equal to 0, 1, 2, 3. It's for null string string. Null string means 0. 0 is null string. Read this example number 2. If the word triple Z is called C and the word double Z is called to D, then the word formed by concatenate of CD. Concatenate means multiply. CD is equal to 2 times Z multiply 3 times Z. It's called CD is equivalent to 5 times Z. Understand, student? Student, read the example number of second. Then I will again explain.
Student, read you any doubt about example number 2? Students, any doubt in example number 2? Madam, Yes. madam, Hello. concatenate. Yes, madam. Concatenate means the adding. Sorry, student, I didn't understand what you said. Means by concatenate is addition. बच्चा सॉरी, आप क्या बोलना चाहते हो? आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही. तो मैं बोल रहा हूँ कि concatenate मतलब का क्या एडिशन है? Concatenate मतलब addition. Addition, ठीक not, it's called not proper addition, it's like multiplication. Like we have C set has element double z. नहीं, C set has triple z and DZ has 2z. Then C into D, it's called multiply by double z to triple z. It call is considered to 5z. अच्छा Understand, student? अच्छा 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 Then example number 3. Example number 3, there is a L2. In set L2, there is a element Z, 2 triple Z, 5 times Z, 7 times Z. It's like odd number, na? Ma'am, screen is not visible. Screen is not visible. Okay. Okay. Then visible. Yes, ma'am. Hello, student. Uh, Example number 3. In example number 3, there is a odd number in set L2. Student, yes madam true na? Yes, ma'am. In example number 2, L2 is a set. There is a element Z, 3 times Z, 5 times Z, 7 times Z. It's an odd number. Yes, ma'am. That's why we use Z ki power odd. Then Z ki power odd means 2n plus 1. 2n plus 1 is also called odd number. N is 0, 1, 2, 3. Anyone? Hello? Then example number 4, there is a one empty set, then 2 times z, then 4 times z. It's a even number. Okay, student. Then another one is a natural prime natural number. Then these all. Then palindrome. What is a palindrome, student? Ma'am, any letter read from forward and backward is same. Yeah, like I. And reverse is also called I. It's called palindrome. Then it means reverse and same. Reverse both are same. It's called palindrome. It's not palindrome. Understand, student? yes There are some examples. Just read and solve these examples. Then we used to learn about clean closure definition. Clean closure is a sum of all the elements, and in clean closure property there is another one task. It's called clean star. Clean star means star symbol.
Sigma is also called clean closure, and whenever we use power of sigma like star, it's called clean star closure. Z, sigma is equal to Z. Z Z clean star is equal to L1 is equal to empty. Empty, then Z, then 2 times Z, then 3 times Z. It's called clean closure. In a clean closure property, we use empty symbol. Student, in clean closure property, we use empty symbol. It's very necessary. Read example number 7. Excuse me, madam. Yes. Please explain the clean closure again, madam. सॉरी बेटा, समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो. मैडम मैं बोल रहा हूँ कि क्लीन क्लोजर जो सिंबल है उसको प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कीजिए. हाँ, we use clean star. Clean star means at the sigma symbol we use power of star. That's called clean star closure. There we need, हमें उसमें क्या जरूरत है, एम्प्टी एम्प्टी एनिमल एलिमेंट की. ये वाला जो एलिमेंट है ना बच्चों, ये एम्प्टी एलिमेंट है जिसको मैं ग्रे से हाईलाइट कर रही हूँ. ये अब इसमें बोला है कि हमें क्लीन क्लोजर बताना है. वी जस्ट कंसीडर क्लीन क्लोजर प्रोजेक्ट. क्लीन क्लोजर क्या है, 0 और 1. तो देन वी फाइंड द क्लीन स्टार. Then we use sigma symbol. In a sigma symbol we use power of star. It's called clean star. There is we use empty. First we use empty variable. Then we use 0. This one 0. Then we use 1. Then we use 2 times 0. Then we use 0 1. Then we use 1 0. Then 1 1 0. Then we continue do this. Okay. Then another one example is like this. Student, these are regular expressions property. Read these all properties. And these all properties we already done. Just read it, then I explain.
Now please explain this. Madam, please explain this. Students, students understand the properties of regular expression. Anyone has doubt about this? Please explain. Sorry. Please explain these expressions from 1 to 13, madam. Okay. 1 to 4, you have knowledge about this? Yes. Okay. Then fifth one is the R multiplied by empty. Empty multiplied by R is equal to R. Ma'am is equal to empty. No, it's a fifth one. Fifth one. Sixth one is also one type of empty sign. This one. Sixth one is a empty. Empty means zero. Zero symbol is considered. That's why R multiply from empty. Empty multiply from R. It's called empty. Empty means zero. Second one is sixth one also empty sign, but there is not a variable like element like zero. That's why it's
its output like R. Understand this one, 6-1. R multiplied by empty multiplied by R, it's called R because there is not a symbol of 0. It represents one or another one symbol. That's why it's considered by R. Then 7 is a S multiplied by R multiplied by 7 and whole multiplied by T. That's why we also like equivalent like R multiplied by ST. It's all student last one we done all these. Student 1 to 9 we also done in मैडम Yes, फ्रॉम one. madam. 10 वी कैन अंडरस्टैंड। Sorry. 10 से हमको समझ नहीं आ रहा है मैडम, वो 1 से 9 तो हमने समझ गया, लेकिन 10 से हमको ये तो 10 हाँ मिनट दिख 10 रहे से हैं। समझा देती हूँ, 10 से समझा देती हूँ। 10 से हम एम्प्टी सिंबल साइन, empty symbol power sign is star, empty symbol power sign is star, it's called empty symbol, this one, like this. This one स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो सिग्मा का हमने पावर लिया था स्टार, जिसको हमने क्लीन स्टार बोला था। क्लीन स्टार का जो हम सिंटेक्स स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं इनपुट के लिए, सबसे पहले हम एम्प्टी सिंबल लेते हैं। एम्प्टी सिंबल वी के शेप में होता है, अपोजिट वी, दैट्स व्हाई वी यूज दिस इन देयर। आया कुछ समझ में स्टूडेंट? मैडम एक बार समझाइए प्लीज। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी है क्लीन स्टार की। क्लीन स्टार क्या होता है, किसी भी चीज की पावर आ जाती है स्टार। जब किसी भी चीज की पावर स्टार आएगी देन वी यूज टू पुट फर्स्ट वेरिएबल एम्प्टी सिग्नल और वी यूज दिस वन एम्प्टी सिग्नल। ओके, हमने एम्प्टी साइन के ऊपर क्लीन स्टार की प्रॉपर्टी यूज की थी, दैट्स व्हाई वी यूज दिस वन एम्प्टी सिंबल। एंड इन 11 वी यूज स्टार क्लीन आर के पावर हमने स्टार लिया जो है क्लीन स्टार की प्रॉपर्टी, देन आर की पावर लिया क्लीन स्टार, देन ये वन टाइम क्लीन स्टार हुआ, फिर ये वन टाइम तो पहले पावर बन गई आर की, देन सेकेंड टाइम दोबारा पावर बन गई आर की। इज जस्ट ओनली टू टाइम क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, क्लीन स्टार की प्रॉपर्टी। 11 क्लियर हो गया स्टूडेंट? हाँ समझा। देन सेम 12 भी ऐसी है जिसमें हमने क्या किया कि आर को मल्टीप्लाई किया, आर के ऊपर पावर लिया क्लीन स्टार, फिर हमने क्या किया क्लीन स्टार को पहले ले लिया, फिर आर को बाद में ले लिया, फिर क्लीन स्टार की हमने प्रॉपर्टी ले ली आर, जिसका क्या मतलब हुआ इसके साथ ऐड हो गया क्या, एक एम्प्टी सिंबल, क्योंकि वी नो कि क्लीन स्टार की प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं एम्प्टी सिंबल से, तो एम्प्टी सिंबल को हमने प्लस कर दिया जो हमारा क्लीन स्टार का एलिमेंट से। तो सेम ऐसी 13 एंड 14 होगा। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमने जब क्लीन स्टार का प्रॉपर्टी लिया, क्लीन स्टार की पावर लिया, तो प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में। ये क्या डीमोर्गन थ्योरम है मैडम? सॉरी, ये जो प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या डीमोर्गन का थ्योरम की बेस्ड है? हाँ हाँ, इसमें हमने डी मॉर्गन वगैरह की प्रॉपर्टी यूज की है, जहाँ पे कम्प्लीमेंट का साइन आ रहा था ना, कम्प्लीमेंट का साइन अंदर आके प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा था और मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर रहा था। अच्छा ओके स्टूडेंट, तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इनको कर लेना। देन हम यूज कर रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज में हम एम्प्टी साइन यूज करेंगे, फिर हम नल साइन यूज कर रहे हैं, फिर ए यूज कर रहे हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक एग्जांपल नंबर
सिक्स, एग्जाम्पल नंबर सिक्स रीड करो स्टूडेंट, देन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल नंबर सिक्स। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर सिक्स करते हैं। किसका है ये एग्जाम्पल नंबर सिक्स? रेगुलर लैंग्वेज का। Firstly, we done regular expression, then we used to work in regular language. L is equal to AB, BA, BB. It's used to regular is used to regular expressions. It's called AA plus AB plus AB plus BA plus BB. It's also called another one regular expressions is like A plus B, A plus B. अब स्टूडेंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे देन ये आएगा। फर्स्ट वन ए को हम सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड वन से। इस ए को हम स्टूडेंट सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन क्या आएगा? ए बी। देन बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से ए बी, देन बी को बी से कर रहे हैं। बोथ आर सेम ना स्टूडेंट? स्टूडेंट बोथ आर सेम ना? यस Yes, मैडम, ma'am. मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, सर मल्टीप्लिकेशन it's a proof. This one is equivalent to this one. इज इक्वल टू दिस वन। Okay. Then finite automata. Finite automata has these properties. Read this, then I will explain. Read these properties, then I will explain. Finite automata.
हेलो स्टूडेंट, फाइनाइट ऑटोमेटा में हम डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स करते हैं. देयर इज अ 5 टाइप ऑफ स्टेप्स. फर्स्ट इज अ ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, देन फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट एंड इनिशियल स्टेट, a subset of all the states, then next state. There is a finite automata example. There is a 4 type of elements. This one is a start, one is a start, and 4 is a final element. And in between 1 to 2 we pass a element, and 2 की loop, there is a loop about 2. लूप मीन्स हम 2 को क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, बी. देन 2 के थ्रू 4 के पास जा रहा है ए, एंड 1 के थ्रू 3 के पास जा रहा है बी, एंड 3 को लूप हम पास कर रहे हैं ए. 3 के पास लूप वैल्यू जा रही है 4 के पास 3 टू 4 बी, एंड 4 इज आवर फाइनल स्टेट. देयर इज अ लूप ए बी. थोड़ा स्टूडेंट आपको फाइनाइट ऑटोमेटा समझ आया थोड़ा बहुत? देयर नहीं इज अ मैडम, आप डायग्राम. एक बार नहीं मैडम, और एक बार प्लीज समझाइए. ओके, पहले इस डायग्राम को एक बार आप देखो, फिर मैं आपको समझाती हूँ. इस डायग्राम में क्या हो रहा है स्टूडेंट, वी स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 से वैल्यू 2 जगह पास हो रही है. मीन्स 1 के पास 2 वेज है. एक तो 1 2 जा रहा है और एक 1 2 3 जा रहा है. तो 1 2 2 में हम दे रहे हैं ए एलिमेंट, हाँ मैडम, 1 से 2 गया फिर. ओके स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से. 1 से स्टार्ट करने के बाद हमारे पास 2 वेज जा रहे हैं. एक तो 1 टू 2 जा रहा है, एक अनदर वन जा रहा है 1 टू 3. 1 टू 2 में हम वैल्यू पास कर रहे हैं ए की, और 1 2 टू 2 जा रहा है बी, फिर 2 टू 4 जा रहा है ए. तो हम इसे 2 वे से कर सकते हैं स्टूडेंट. देयर इज अ 2 वे. Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, above 4 might be signs there. Okay, just wait. One is answer is this: A, B, A, A, B. If we go to like 1 to 2 to 4, the answer is this. If we want to go like 1 2 3, answer is B,
ए बी, ए बी। आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ आया? 1 2 2 जा रहे हैं और 1 2 3 जा रहे हैं, दोनों का आंसर अलग आएगा स्टूडेंट्स। Yes, ma'am, got Yes, it. ma'am, got it. गॉट इट? एंड देर इज अ टेबल ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टार्ट हो रहा है एक्स से। एक्स से वाई के पास क्या वैल्यू पुट हो रही है, इनपुट हो रही है ए। एक्स टू जेड के पास क्या वैल्यू जा रही है, बी। वाई टू एक्स के पास ए वैल्यू जा रही है, जेड टू वाई टू जेड के पास बी वैल्यू जा रही है, देन फाइनल जेड टू जेड के पास ए वैल्यू जा रही है, जेड टू जेड के पास बी वैल्यू जा रही है। इट्स अनदर वन इनपुट टेबल। Okay, ma'am. Okay, ma'am. गॉट इट? देन देर इज अ आउटपुट x to y a. There is a x to y a, y to x, then y to x also a, x to b z, x to x to z b, x to z b, then then uh then x to z b, y to z b, y to z b, then z to z a, z to z b. It's called double circle means end of final stage of final automata, and this arrow sign used to start automata. ओके स्टूडेंट, टेबल के थ्रू उसका आउटपुट कैसे निकालना है और आउटपुट के थ्रू टेबल कैसे बनाना है ये आपको आना चाहिए। Okay, ma'am. Okay, ma'am. या देर इज अनदर वन automata and there is a table, then another one automata and there is a table. Read this, student, read this, then I explain. Done, ma'am.
मैडम ये समझा दीजिए प्लीज। हेलो स्टूडेंट, समझाती हूँ आपको। अब देखो, इसमें क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा एम इज अ क्वांटपल एम। इसका ये मतलब है फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले हम क्यू का साइन यूज करते हैं। क्यू मतलब होता है फाइनल स्टेट। फिर सिग्मा का साइन यूज करते हैं जिसमें हम इनपुट करते हैं सिंबल्स को। फिर हम स्मॉल क्यू का साइन यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, कैपिटल क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा से, तब हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेज मिलेगी। फिर क्यू जीरो है। क्यू जीरो मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेट, जो बिलोंग करता है किससे, कैपिटल क्यू से। फिर एफ है फंक्शन, उसका सबसेट हुआ क्यू। एफ किसका सबसेट है, क्यू का, जो एक्सेप्ट करता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। जैसे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है एम में क्या है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, जो हम पास करें डाटा जीरो और वन। किसको पास करें, क्यू वन और क्यू टू को। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जीरो, क्यू जीरो है, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, स्टेट है। क्यू जीरो क्या पास कर रहा है, क्यू वन को बी। देन क्यू जीरो पास कर रहा है क्यू थ्री को ए। देन क्यू वन पास कर रहा है क्यू थ्री को बी। तो हम कैसे वर्क करेंगे इसमें स्टूडेंट, क्यू वन से हम क्यू वन पे, क्यू जीरो से हम क्यू वन पे जाएंगे, देन हम क्यू टू पे जाएंगे। एक तो ये एंड हो गया ऐसे। इसका क्या आंसर रहेगा, बी बी ए बी। हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना है। एंड अनदर वन वे है, ए, क्यू जीरो किसको पास कर रहा है, क्यू थ्री को ए, और क्यू थ्री को क्या पास कर रहा है, ए बी। बट इससे हम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि एरो यहीं पे ही खत्म हो रहा है, तो हम जस्ट ओनली ये वाला कंसीडर करेंगे। क्यू जीरो से क्यू वन में जाएगा बी, क्यू वन से क्यू टू में जाएगा बी, क्यू टू से क्यू टू में जाएगा ए बी। देन आंसर इज बी बी ए बी। आगे समझ में स्टूडेंट। ओके मैम। अब इसमें इनपुट टेबल में हमें ये बताया गया है कि क्या एक्सेप्ट हो रहा है क्या नहीं। एक यहाँ पे ना मिली और मोन मशीन है। मिली में क्या होता है, ए डिवाइड बाय एक्स होता है, और मोन में क्या होता है, ये आई और जे दो वेरिएबल है जिनके अंदर हम आउटपुट कैसे निकालेंगे, ए डिवाइड बाय एक्स। और मोन में क्या होता है, जो हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे ना, दो हम जो सेट्स यूज करेंगे उसी का ही डिवाइड कर देंगे, आई डिवाइड बाय जे डिवाइड बाय, और इनपुट जाएगा ए। इसका एग्जांपल ऐसे समझो, ये क्या है, मिली। मिली में क्या कर रहा है, जीरो से वन पे जा रहा है बी ऑब्लिक जीरो, वन से टू में जा रहा है ए ऑब्लिक जीरो, टू से थ्री में जा रहा है बी ऑब्लिक वन, फिर देन थ्री से टू में आ रहा है ए ऑब्लिक टू, फिर टू से जीरो में आ रहा है ए ऑब्लिक जीरो, और जीरो को क्या दे रहा है, ए ऑब्लिक जीरो, और वन वन को क्या दे रहा है, बी ऑब्लिक जीरो, और थ्री क्या दे रहा है, वन को बी ऑब्लिक जीरो। ये सारा किसका प्रोसेस है स्टूडेंट, मिली का। स्टूडेंट मिली प्रोसेस समझ आ रहा है आपको। Yes, ma'am. Got it. ओके, देन मोड में क्या है, देखो मोड में हम सीधा आउटपुट दे रहे हैं, बट हमने जो अंदर वेरिएबल्स यूज किए हैं, जो सेट्स यूज किए हैं, वो उसमें हम डिवाइड का साइन यूज कर रहे हैं, जैसे जीरो डिवाइड बाय वन डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय थ्री डिवाइड बाय। और इनपुट जो ले रहे हैं हम डायरेक्ट ले रहे हैं, जैसे जीरो डिवाइड बाय वन डिवाइड बाय को दे रहा है बी, वन डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय को दे रहा है ए, टू डिवाइड बाय थ्री डिवाइड बाय को बी दे रहा है। ऐसे ये पूरा पूरा प्रोसेस चल रहा है, इट्स कॉल्ड मोर। Ma'am, why we are using that the zero divide by? We didn't use anything in divide by, just it's a machine, more machine, it's a just only diagram of more machine. Okay, there is a color we use in more machine. G means green, Y means yellow, R means red. We use the color. 0 divided by GR, green, multiply by red, which color is find out, then divide by 0. These all are color. It's traffic signal transmission diagram.
You know the traffic signal is, students? Yes, ma'am. This is a traffic signal diagram. 0 divided by green and red, 1 divided by yellow or red, 3 divided by red yellow, 2 divided by red and green, and then pass the signals. 0 divided by gr, pass the 0 signal. 0 divided by 0 divided by gr, pass signal 1 to 1 divided by yr, and these are signals. Okay, student. 1 means on or 0 means off. And these all are symbols. It's a turning machine. Turning machine is very important topic for exam, and automata is also very important topic in exam. Turning machine we use tape. This is a infinite tape. A B B hash C B hash means hold. It's a turning machine. Tape is finite control. It's read and write. Head. Firstly, we use tape. In a tape, we use input data. Input data is D A B. Hash means hold. Then CB. Then we use control of these finite type of controls. With tape head. Read this turning machine. Then I explain. मैम। हेलो। ये समझ नहीं आ रहा है मैडम इस प्रॉब्लम से। स्टूडेंट इसको रीड किया, अब एक्सप्लेन करूं क्या होता है। टर्निंग मशीन फॉर्मेट में क्या है स्टूडेंट?
सबसे पहले तो टर्निंग मशीन में हाफ स्टेट वर्जन दे रखा है, जिसमें हमें टपल मीन्स होती है रोज, उसके स्टेप दे रखे हैं। क्यू मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा की स्टेट्स होंगी। सिग्मा मतलब होएगा फाइनाइट ऑटोमेटा का नॉन ब्लैंक इंफॉर्मेशंस। फिर ये वाला जो सिंबल है ना स्टूडेंट, इसका मतलब होता है ब्लैंक सिंबल, इसका मतलब होता है टेप सिंबल, और इसका मतलब होता है ब्लैंक। हैश मतलब होता है ब्लैंक सिंबल। नेक्स्ट मूव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्यू इंटू क्यू, क्यू एक्स एक्स एल आर एन। एल मतलब होता है लेफ्ट, आर मतलब होता है राइट, एन मतलब होता है नंबर। अब जैसे देखो स्टूडेंट, ये टेबल है, हमें डाटा गिवन है q इज इक्वल टू क्यू जीरो मीन्स होता है स्टार्ट करना, h मतलब होएगा होल्ड, सिग्मा होगा ए बी, फिर ये टेप है और टेप के अंदर हमें क्या क्या डाटा देना है, ए बी, और हैश मतलब होता है ब्लैंक स्पेस स्टेट। फिर क्यू क्या है, स्टेट जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, क्यू जीरो। इनपुट क्या कर रहा है इसमें, सॉरी सॉरी हेलो, क्यू जीरो हमें फर्स्टली क्या आंसर दे रहा है स्टूडेंट, क्यू जीरो हमारा इनपुट ले रहा है ए, देन क्यू जीरो क्या कर रहा है, हैश, हैश मतलब एम्प्टी स्टेट है, फिर वो किस में आंसर दे रहा है स्टूडेंट, राइट साइड में। देन क्यू जीरो अगेन ले रहा है बी, देन वो आंसर किस में लेके जा रहा है, राइट हैंड साइड में। देन क्यू जीरो ले रहा है हैश, हैश मतलब ब्लैंक स्टेट, तो ब्लैंक स्टेट आते ही वो होल्ड कर देगा, होल्ड करते ही वो नेचुरल नंबर में आ जाएगा, और नंबर में आते ही ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये टेबल है स्टूडेंट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हेलो। हेलो। हाँ मैम, ये जो बुक है ना, वो ऐप है ना युगनू का, उसमें नहीं दिख रहा है ये ब्लॉक। बुक में बेटा ब्लॉक नंबर है 2। नहीं दिख रहा है, 1, 3 और 4 ही दिख रहा है उस पे। अच्छा, हटा दिया हाँ। मैंने। सॉरी। मैडम ये एलएमएस में नहीं अवेलेबल है, बट आप लोगों ने जो सेमेस्टर बुक भेजा है ना उसमें ये अवेलेबल है। सो आप लोगों ने मीनाक्षी मैडम, आपको जो सेमेस्टर बुक आया है ना थ्रू ईमेल, इट इज अवेलेबल इन दैट वन। ओके, यू मैम प्लीज ऑल्सो। आप इसकी लिंक हमें भेज दो ना, तो डाउनलोड करेंगे। ओके, फर्स्टली गो ई ज्ञान कोश स्टडी मटेरियल, ई ज्ञान कोश स्टडी मटेरियल। स्टूडेंट मैंने लिंक शेयर कर दिया।
स्टूडेंट आपको लिंक मिल गया डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स की बुक का? यस मैम, मिल गए मिल गए। ओके, अब हम कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ हैज वर्टेक्स एंड एजेस। x1 is a vertex, x2 is a vertex, or x1 or x2 between is a one edge. And there is also another one graph x1 x2, there is a edge x1 or x2 x1. These are graph, students. In a graph in a graph we have two types of things. There is a one is a vertex, another one is a edge. Vertex is x1 x2, edge is between them two vertex. Okay student, student understand graph? यस मैम। And example number 2, this is another one graph. This is there is a x1 x2 one edge, x1 x4 another one edge, x3 x4 another one edge, x3 x2 another one edge, x1 x2 x3 x4, these are vertex. And this is another one graph, and these are multi graph. In one graph there is a multiple things, that's called multiple graph. This one is a loop, and this is also graph, and these are complete graph. Complete graph means there is a completions. x1 x2 complete graph. This is a k1 complete graph. This is a complete graph. This is 3 matrix complete graph. This is a 4 matrix complete graph. This is a 1 vertex complete graph, 2 vertex complete graph, 3 vertex complete graph, 4 vertex complete graph, 4 vertex complete graph. This is a called star topology. It's also called graph. This is a cycle. It's also called graph. And degree, regularity, and isomorphic. Student, read what is a degree, then I will explain you. Read this.
हेलो स्टूडेंट, डिग्री क्या होती है? एक वर्टेक्स के पास कितनी नंबर ऑफ एजेस है, इट्स कॉल्ड डिग्री। लाइक एक्स फाइव के पास कितनी नंबर ऑफ एजेस है? 1 2 3 4 5, it's a degree of x5. x5 degree is 5. y1 has degree. x1 has three degrees, 1 2 और 3. स्टूडेंट, डिग्री समझ आया आपको? स्टूडेंट, आपको डिग्री समझ आया? नहीं मैडम, एक बार हाँ और मैडम। प्लीज समझाइए। सॉरी। मैडम एक बार और फिर से समझाइए मैडम ओके प्लीज। ओके, देर इज एक्स फाइव के पास कितनी एजेस है? काउंट करके बताओ। काउंट द एक्स फाइव एजेस। 5. द डिग्री ऑफ x5 is 5. एंड y1 के पास कितनी नंबर ऑफ एजेस है? काउंट करके बताना। 1. देन x5 डिग्री is 1. x1 has how many edges? No, x1 has 3. 1 2 or 3. x1 has 3, degree is 3. Understand? Hmm. For regular graph means every vertex has 4 edges, like this. x1 has 4 vertex, 1 2 3 4. x12 has 4 vertex, 1 2 3 4. For regular graph means every vertex has 4 edges. Okay, students? Got it? Regular graph means which number there is a for regular graph, that means each vertex has 4 edges. This called four regular graph. x1 has 4 edges, x2 has 4 edges, x3 has 4 edges, x4 has 4 edges. All the vertex has same degree, that's why it's called four regular graph. Subgraph. Subgraph means this is a graph and this has subgraph also. x1, x2, x3, x4 is a subgraph of graph G. x7, x5, x8, x6 is also subgraph of graph G, or this is also subgraph. There is a connectedness. This is a connected. There is a path, circuits and cycle. Path is like x5, x6 has one connected graph, x9 or x10 has one connected graph. There is a connection between x1 or x2. Read this definition: path, close, open and cycle. Then I will explain.